Namaskar, this is Devendra Prasad again taking on one more lecture on the C programming series. Today I'll discuss on this important program on the structure where we will learn how to create a group of 5 books, let's suppose. So because book has pages and names, these are the two details for the books, and we are making a group of such dissimilar details, so definitely this will be a structure. So I'm just talking about the 5 structures you are going to keep in a array, and then on the basis of one property, let's suppose on the basis of pages, you want to arrange them, all these books in that array. You want to arrange all these books in that array in the ascending order by the number of pages. Okay, what does it mean? uh, Basically we want to write a sorting program. Okay, and what we are expecting, so first I'll take you to that output so that you will be clearly understanding. So let me take you to the directly to that window program or turbo cid. So there I have already written that program for you, so we will try to write that program again, but let's understand what we want. So already that program, I think it was struct struc 5, good enough. Okay, so just taking you to the output window. So I'm running this program alt r run. So what we want, let's suppose I am creating an array of structure, and in that structure there are two things, name and pages. First I am going to enter the pages, let's say 6 to 5, and the name of the book, for example, let us see. So this is one book detail. Enter the another book detail. So let's say there are no number of pages 1 to 3, and the book name is OS. Class is, the number of pages is 342. Let's say book name is computer network. So here you see that your book name obviously a multi-word string, and the number of pages is an integer. Now you have entered 3 structures in an array, and now you are printing those structures in ascending order by the number of pages. So here you see in the output that the pages number 1 to 3 is minimum, so the book having the minimum number of pages is getting printed first, and then this book having the higher number of pages, and lastly the the book having the largest number of pages. Okay, so that we actually want to discuss. Okay, so what is the concept behind it? So earlier we if you remember, if you have watched the last video, so there you learned that how we are going to create a structure in which we are having some string as well, how we are going to create a structure, and how we are going to print that structure. So while we are printing using this for loop, before doing that I'm implementing this small piece of code for sorting all those structures on the basis of the number of pages. Okay, so this is a small code that is actually the bubble sort code, and I just applied that code before printing the array of structures. Okay, so this thing we just did. So now what is the concept? This is a bubble sort program. बबल शॉर्ट प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसके लिए we will discuss a little bit logic of the bubble short, and will write the bubble short program as well. So first let me take you to the bubble short program quickly, and then we will discuss its logic. So again, there is a program bubble bubble, and in this program, just to show you the output, there is an array, and these are the 5 integers in that array. Now I want to arrange all these integers into the ascending order. So this is a simple bubble sort code, and now after sorting this array, I'm just printing the array. So मेरे सारे elements ascending order में print होने चाहिए. तो मैंने run किया,
So you see that the random order of the sequence which was in the input has been arranged in the ascending order. So now you are getting ascending order 1 2 3 4 8. Now what is the logic of the bubble shot? इसको डिस्कस करने के लिए a little bit time we are investing onto the this theoretical part. So I am taking you to this whiteboard. ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, पर इस क्वेश्चन का आधार है बबल शॉट, और बबल शॉट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सपोज ये एरे था, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे शॉर्ट करना है. एक मेथड है हमारे पास बबल, सब सिंपलेस्ट मेथड. कैसे ये काम करता है? तो बहुत सिंपल है, हम पास चलाएंगे. हर पास में हम लोग क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसको इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में कंपेयर करेंगे. अगर ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हुआ तो स्वैप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. तो इस तरीके से हर बारी में दो दो एलिमेंट पकड़ते जाएंगे फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड टू द राइट हैंड, और जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे उतने पास हमें चलाने पड़ेंगे. अब सिंस वी आर कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स एट ए टाइम टुगेदर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 8, ये है 4, ये है 1, ये है 3, ये है 2. हम पहले इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं. जब ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे. जब ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो उसके बाद हम फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और जब ये दोनों भी कंपेयर हो जाएंगे तो लास्ट में हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं. सो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जितने एलिमेंट्स है उससे एक कम हमको लूप चलाना होगा, और उसमें हम लोग ये दो दो एलिमेंट कंपेयर करेंगे. अदरवाइज सपोज आप इसको भी लेने वाले हैं, सपोज लास्ट वाले एलिमेंट को, बट देयर इज़ नो अदर एलिमेंट टू ग्रुप विद इट, तो ये एरर मारेगा, एरे आउट ऑफ बाउंड. तो ये हमें नहीं करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो हम हमेशा इस तरीके से चलने वाले. तो ये हो हमारा पहला पास, जिसे हम बोलेंगे पास 0. फिर पहले पास में जो भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो अपनी इस पोजीशन पे आ चुका होगा. इसके बाद जो मेरा पास 1 चलेगा वो रिमेनिंग एलिमेंट्स पे चलेगा, जो नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को अपनी इस पोजीशन पे फिट कर देगा. तो ये हमारा आइडिया होता है बबल शॉट का. तो एक बार ये रन करके दिखाता हूँ, तो इससे हमें और आइडिया आ जाएगा. तो हमारे पास गिवन क्या था, 8 4 1 3 2. हमारे को ये 5 एलिमेंट गिवन है, 5 इंटीजर गिवन है. 8 1 4 3 2 1 8 4 1 3 2 8 4 1 3 2 1 2 3 4 5. हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं. तो हमको कितने पासेस चलाने होंगे, एक कम, 5 - 1 4. और कितने कंपेयर करने होंगे एक पास में, वो भी हमें 4 कंपैरिजन करने होंगे, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट को हमें छोड़ना है. तो हम चला रहे हैं अपना पास 0. पास 0 हमने चला. पहले इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करके देखेंगे, क्या 8 4 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है. तो ये 4 इधर आ जाएगा स्वैप होकर, और 8 इधर चला जाएगा. फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे 8 और 1 को. नाउ इज 8 ग्रेटर देन 1? हाँ जी बड़ा है, तो ये स्वैप कर लेंगे 1, और 8 आ जाएगा इधर. फिर हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं, 8 और 3. अभी द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, यस है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा स्वैप करके, 8 यहाँ चला जाएगा. एंड लास्ट कंपैरिजन होगा ये वाला, 8 ग्रेटर देन 2, यस है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ चला जाएगा. तो इतने कंपैरिजन करने में हमें ये जो 8 है अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है. तो जब हमारा पहला पास चला तो हमारे पास एरे की स्थिति क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 1 इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 8. अब इस पे हम चलाएंगे अपना अगला पास 1. फिर से हम वही करेंगे, लेकिन इस बारी हम यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ तक अपना लूप चलाएंगे, क्योंकि 8 अपना एडजस्ट हो चुका है. तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले. तो 4 ग्रेटर देन 1 हाँ जी है, तो 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा. फिर 4 और 3 को कंपेयर करेंगे, तो 4 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा. 4 और 2 को करेंगे, 4 ग्रेटर देन 2 है, स्वैप कर देंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा.
बस यहीं तक हम लोग स्टॉप करेंगे। तो इस बार सेकेंड पास में 4 अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सो आफ्टर द सेकेंड पास व्हाट विल बी द एरे, सो 1 यहाँ आ चुका है, 3 यहाँ आ चुका है, उसके बाद 2 यहाँ आ चुका है, 4 अपनी जगह सेट हो गया है, 8 पहले से सेट था। तो इसके बाद इस पे हम लोग चलाने वाले हैं अगला पास, दैट इज़ पास 2। और ये पास 2 हमारा कहाँ तक चलेगा, ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा सेट हो गया, तो पास 2 हमारा यहाँ तक चलेगा। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। 1 ग्रेटर देन 3 नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हम स्वैप नहीं करेंगे। फिर अगला पास चलाएंगे 3 ग्रेटर देन 2, हाँ जी है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम स्वैप करेंगे। यहीं तक हमारा पास चलना है। इस पास के चलने के बाद में हमारे पास एरे क्या हो जाएगा, 1 2 3, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 8। अब इस पे हमारा चलना है लास्ट पास 3। तो 3 पास में कंपैरिजन करने के लिए हमारा सेट हो गया, ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा सेट हो गया, लेकिन हमारा यही बचता है। तो इन दोनों पे हमें कंपेयर करना, 1 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। और यहीं पर ही जब हमारे दो कंपैरिजन पूरा हो गया, तो इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के बाद में whatever array I am getting finally, this will be 1 2 3 4 8। और ये आप देखेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है, इस लॉजिक के लिए कोड लिखना है। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि पास भी कितने चलने हैं, n-1, और हर पास में कंपैरिजन भी कितने होने हैं, n-1। पहले पास में पूरे कंपैरिजन होंगे n-1, अगले पास में कितने कंपैरिजन होंगे, एक कम। तो इस लॉजिक को लगाने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक लॉजिक लगेगा, फॉर, जो होगा हमारे इन पासेस के लिए i0 i लेस देन, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो हम बोलने वाले हैं i लेस देन 5। तो ये 0 से लेकर के 4 तक चलेगा, एंड देन i प्लस प्लस। ये हो गया हमारे i की वैल्यू के लिए, इस तरीके से बढ़ाने के लिए। उसके बाद अंदर आएंगे, फॉर j इक्वल्स टू 0 से चलना हर बारी में, और यहाँ पे j लेस देन, यहाँ पे हम लोग सिंपली करने वाले हैं 5 में से हम i को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें हर बारी एक एक माइनस करना है। स्टार्टिंग में 0 है, तो i 0 रहेगा, तो 5 माइनस 0 5 ही रहना है। अच्छा, इसमें भी हमें लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर नहीं आना है, यानी कि इस वाले एलिमेंट को कंपैरिजन में नहीं डालना, तो हम एक और माइनस कर देंगे, -1। देन दिस इज योर j प्लस प्लस, दैट्स इट। अंदर सिंपल सा कोड लिखना है, इफ हमें पता है a ऑफ j इफ ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, अगर है a ऑफ j प्लस 1 से बड़ा है, तो हम स्वैप करने वाले। स्वैप करने के लिए हम ऊपर एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेंगे। हम सबसे पहले टेम्प नाम के वेरिएबल में a ऑफ j को रख लेंगे, या a ऑफ j प्लस 1 को रख लेंगे, कुछ भी रख लो आप। तो a ऑफ j प्लस 1 को टेम्प में रखा, फिर a ऑफ j प्लस 1 पे हम a ऑफ j को रख देंगे। फिर जो हमारा a ऑफ j बचा, इसमें हमारा टेम्प जो था उसको असाइन कर देंगे, दैट्स इट। ये इफ बंद होगा, ये फॉर बंद होगा, ये अपना बाहर का आउटर फॉर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हमें ये बबल सॉर्ट की स्टोरी समझ में आ गई, तो हम यही प्रोसेस अपने प्रोग्राम पे भी लगा सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम सिंपली है कि हमारे पास सिंपल एरे ऑफ इंटीजर्स नहीं है, इवन स्ट्रक्चर्स का एरे है, स्ट्रक्चर्स का एरे है। और कितने स्ट्रक्चर्स है, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वट। और हर स्ट्रक्चर में क्या है, 2 चीज़ें हैं, पेजेज और नेम्स। तो अब आप इसको ऐसे मान के चलो कि आपके पास ये एक, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, और इसमें sorry, instead of presenting it as a circle, I should present it as an array। इसको array फॉर्म में मुझे प्रेजेंट करना चाहिए। obviously structure is nothing but a group of dissimilar data items, ठीक है।
तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और ये है पहला स्ट्रक्चर। इसमें पहले मुझे रखना नंबर ऑफ पेजेस, लेट्स से मैंने रख दिए 6 to 5 और नेम मैंने लिख दिया लेट अस सी। फिर मेरे पास इसके जस्ट बाद रखा जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर, उसमें मान लीजिए यहाँ पे रख लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे रख देते हैं नाम OS। फिर मेरे पास है तीसरा स्ट्रक्चर, इसमें है 3 4 2 और यहाँ पे है CN। तो इस तरीके से आप देख रहे इस तरीके का स्ट्रक्चर बने होंगे। अब हमारा आइडिया क्या है कि ये है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स इन दिस एरे और वो इस तरीके से अरेंज होंगे। अगर मैं इस एरे का नाम B रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 0 1 2। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा B ऑफ 0, इसे मैं बोलूँगा B ऑफ 1, इसे मैं बोलूँगा B ऑफ 2, B ऑफ 2। तो B ऑफ 0 से मुझे ये वाला प्रॉपर्टी पकड़ना है। सो दिस इज व्हाट पेजेज। फिर B ऑफ 1 का भी मुझे ये वाला प्रॉपर्टी पकड़ना है, तो दिस इज व्हाट B1 डॉट पेजेज। और ये वाला प्रॉपर्टी पकड़ना है तो ये भी क्या हो जाएगा B2 डॉट पेजेज। तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए क्या है, हम अभी तक B0 को कंपेयर कर रहे थे, अब हम कंपेयर करेंगे B0 का पेजेज को B1 के पेजेज के साथ में। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। उसके बाद जब मुझे स्वैप करने की बारी आएगी तो वहाँ पे तो हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ स्वैप कर रहे थे यूजिंग अ टेम्प वेरिएबल। टेम्प भी इंटीजर होना चाहिए, तभी ये इंटीजर पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें इसमें असाइन कर दोगे और फिर इसमें टेम्प की वैल्यू असाइन कर दोगे। कैसे होता है, मान लीजिए ये 4 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है टेम्प। टेम्प में कुछ भी नहीं इनिशियली। इस 4 को मैं पहले टेम्प पे रख दूंगा, फिर उसके बाद इस 1 को मैं 4 के जगह पे रख दूंगा, फिर बाद में यहाँ पे जो 4 है इसको इसकी जगह पे रख लूँगा। तो ऐसे मेरा स्वैपिंग होता है। अब अभी मुझे दो स्ट्रक्चर का स्वैपिंग करना है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा करके यहाँ प्लेस करना और ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ प्लेस करना है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा स्ट्रक्ट बुक टैब, इंटीजर टैब ना करके टैब। अभी भी हम वही स्ट्रक्चर करने वाले। तो मेरा मान लीजिए मुझे इन दो स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो इस पहले वाले स्ट्रक्चर को मैं रिप्रेजेंट करूँगा B ऑफ 0, इसको मैं कॉल करूँगा दिस इज माई B ऑफ 0, दिस इज माई B ऑफ 1। तो हम इसको सिंपली ऐसे बोलने वाले हैं कि पहले टेम्प में हम B ऑफ 1 को रख लेते हैं, फिर B ऑफ 1 स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा B ऑफ 0 स्ट्रक्चर असाइन कर देंगे। तो इस 1 को मैंने रख लिया टेम्प में और इस 1 की जगह पे पूरा का पूरा B0 उठा दिया। अब B0 वाली जगह पे जो भी टेम्प में था वो हम प्लेस कर देंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अरेंज या स्वैप हो जाएंगे। स्वैपिंग को यहाँ पे हम सीधे सीधे इस कंसेप्ट से दिखा सकते हैं कि सिंपली ये जो दो डिटेल हैं ये चेंज हो जाएंगे। पहले इस वाले स्ट्रक्चर में जो भी पड़ा था अब इसमें हो जाएगा 1 2 3 और OS, और इसमें जो भी पड़ा था इधर हो जाएगा 6 to 5 लेट अस सी। दैट्स इट। तो ये हमारा सीधा सा प्रॉब्लम है जो कि सॉर्टिंग वाले प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नाउ आइडिया समझ में आ गया, तो हम इस कोड को समझ लेते हैं। तो पहला कोड वेरी सिंपल, ये हमारे पास एरे था, बबल सॉर्टिंग लगानी है। हम लोगों ने एरे डिक्लेयर करा 8 4 1 3 2। देन हमने दो वेरिएबल बनाए आई जे एंड टेम्प। आई हो गया आउटर पास चलाने के लिए, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज फॉर पासेस। और जो इनर लूप है वो पासेस के अंदर में कंपैरिजन करने के लिए है, कंपैरिजन। ओके, सो हमारे पास इतने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो मेरा 0 से लेकर के 4 तक 5 बार ये लूप चलेगा, यानी कि जितने एलिमेंट उतने पासेस हमें चलाने। लेकिन एक पास में कंपैरिजन कितना करना है, एक पास में कंपैरिजन करना है एक कम।
हर बारी एक कम। सो पहले बारी अगर जे 0 से आप चला रहे हो तो पहले कंपैरिजन चलेगा j इक्वल्स टू 3 तक। मतलब यू आर गोइंग टू पिक एलिमेंट्स 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 वाले को 5 वाले के साथ में आप सॉरी योर इंडेक्सेस आर ऑलवेज अप टू द 4। सो ये 8 हमारे 0 इंडेक्स पे, देन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सो आप लास्ट में जब 3 इंडेक्स पे पहुंचोगे तो 3 इंडेक्स वाला 4 इंडेक्स के साथ में कंपेयर हो रहा होगा, उसके बाद आपको बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। सो यहाँ पे 0 से आप चले, ये हुआ आपका 5 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 4। तो आपका ये लूप अंदर वाला चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। कंपैरिजन बड़ा आसान है, ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस 1 से कंपेयर करेंगे। अगर बड़ा हुआ तो हम स्वैप कर रहे हैं। स्वैप का सिंपल सा लॉजिक, ए ऑफ जे को डालो टेम्प में, फिर ए ऑफ जे में ए ऑफ जे प्लस 1 को डालो, फिर ए ऑफ जे प्लस 1 में टेम्प में जो भी था उसको वापस कर दो। तो ये अपना स्वैपिंग का कोड होता है। अगर बड़ा है तो असेंडिंग चले। अगर यही कोड में थोड़ा सा चेंज करूँ और मैं बोल दूँ कि डिसेंडिंग में करना है, तो आपको बस यहाँ पे ग्रेटर देन हटा कर करके लेस देन कर देना होगा। ओके, तो ये आप करोगे। करने के बाद में लेट सपोज ये चला जे इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हुआ ये 0 को कंपेयर करेगा 1 के साथ में, फिर जे बढ़ करके हो जाएगा 1 को कंपेयर करेगा 2 के साथ में, फिर जे बढ़ करके हो जाएगा 2 को कंपेयर करेगा 3 के साथ में, और 3 को फिर जे बढ़ के जब 3 हो जाएगा 3 को कंपेयर करेगा 4 के साथ में। और 3 को 4 करने के बाद जब जे की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 पे ये लूप जाएगा नहीं और लूप से बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद में पहला पास कंप्लीट हो गया और पहले पास के बाद एरे चेंज हो चुका है। देन वट एवर एरे वी आर रिसीविंग, वी आर ऑब्टेनिंग आफ्टर द फर्स्ट पास, ऑन दैट आई एम परफॉर्मिंग और वी विल बी परफॉर्मिंग द सेकेंड पास। सेकेंड पास मतलब i इक्वल्स टू 1। i इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनाएगी, 5 माइनस 1 यानी कि 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा हो गया इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो इस बारी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक चलना है, दैट शुड बी द लास्ट एलिमेंट। तो लेस देन 3 मैंने कह दिया, तो इसका मतलब 0 के लिए काम होगा, 1 के लिए काम होगा, 2 के लिए काम होगा। तो इसको यहाँ तक कंपेयर कर करके एक और लार्जेस्ट वैल्यू अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। देन ये लूप से बाहर आ जाएगा, फिर चलेगा i इक्वल्स टू 2 के लिए। i इक्वल्स टू 2 चलेगा तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2 यानी कि 3, 3 माइनस 1 यानी कि 2, यानी कि इंडेक्स कहाँ तक चलने, लेस देन 2 तक। तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा। तो 0 और 1 पे चलेगा तो सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करेगा। उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 का मतलब हो गया 5 माइनस 3 यानी कि 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो 0 के लिए चलेगा और लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि 0 के लिए चलेगा। तो 0 0 खुद से तो सिंगल एलिमेंट कंपेयर होगा नहीं, तो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, फॉर लूप के अंदर बाहर आ जाएगा। देन i इक्वल टू 4 पे चलेगा। 4 पे चलने के बाद में भी कुछ नहीं होना, जब पूरा सारे पासेस खत्म हो जाएंगे then your array is completely sorted, and with this simple for loop you are going to print each element present in the array. Okay, so this will be the simple code. Again running this program one more time to see the output. There is an error, oh sorry, this d words introduce, alt r run. So this is the array you are getting. Okay, let me change the array. हम सपोज यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 10 और यहाँ पे रख लेते हैं मान लीजिए 11, या सारा रिवर्स कर लेते हैं। पहला एलिमेंट को रख लेते हैं 1, इधर रख लेते हैं 10, इधर कर लेते हैं 9, इधर कर लेते हैं 8 और इधर कर लेते हैं 7। सो कंप्लीट सीक्वेंस है अपना। जब भी हम इसको ऑल्ट एफ करेंगे, ऑल्ट एफ करें और सेव करें, देन ऑल्ट आर करें, रन करें, सो यू आर गेटिंग दी 7, 9, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, the same logic you are going to implement with this structure program. So again I am opening the another program that was struct 5. So in that program struct pb, okay,
this is struct 5. So that was a complete program. Okay, so what I did, we simply created the same structure that we created yesterday. So here we are creating the array of structures. For the experiment purpose, we are creating only the array of 3 structures only. देन यहाँ पे हमने वो temp वेरिएबल क्रिएट किया, ये भी स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा बिकॉज वी आर गोइंग टू असाइन अनदर स्ट्रक्चर टू दिस. ओके, जैसे इंटीजर इंटीजर वेरिएबल में जाएगा वैसे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वेरिएबल में जाएगा. आई और जे वही लूप चलाने के लिए, पहला सिंपली स्ट्रक्चर्स में डिटेल डालने के लिए, देन सेकेंड लूप हमारा बबल शॉट को इम्प्लीमेंट कर रहा है. अभी 3 के तक चला रहा था तो 0 1 2 3 कोड वही है, j इक्वल टू 0 3 माइनस i माइनस 1 चलेगा, सेम लॉजिक लगाना है. बट एक छोटा सा चेंज आ गया बिकॉज यू नो दैट आपने स्ट्रक्चर में जाना है तो आप स्ट्रक्चर को पकड़ रहे हो बी ऑफ जे से. स्ट्रक्चर के अंदर में भी पेजेस को आपने यूज़ करना है तो डॉट पेजेस से आप वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट रिसीव कर रहे हो एंड देन कंपैरिजन कर रहे हो इन पेजेस एट्रीब्यूट का. अगर ये पेजेस पहला वाला पेजेस दूसरे वाले पेजेस से बड़ा हुआ देन यू आर गोइंग टू स्वैप द स्ट्रक्चर्स एंटायर स्ट्रक्चर्स. तो पहले वाले स्ट्रक्चर को टैंप में, फिर पहले में दूसरे वाले को असाइन कर दिया, फिर दूसरे वाले में टैंप को असाइन कर दिया, तो स्वैपिंग हो गई. तो सारे स्ट्रक्चर जब परफेक्टली स्वैप हो जाएंगे then you are going to print in a normal way all the structures. So this time the structures are going to be printed in ascending order by the number of pages. ऑल्टा रन करके देख लेते हैं. पहला डिटेल सपोज मैं डाल लेता हूँ 1 2, बिल्कुल रिवर्स डिटेल डाल लेते हैं. पहले मैं 987 और बुक का नाम है मान लीजिए लेट अस सी, फिर दूसरी बुक में है मान लीजिए 765 और उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क, एंड लास्ट बुक है 1 2 3, इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, देन वी hit enter and here you see the ascending order sequence. So first 1 2 3, then 765, then 987. I entered 987 first, then 765, then 1 2 3, but I am receiving, I arranged the books or array of structures in ascending order by the number of pages. So I am getting 1 2 3 first, then 765, then 987. Okay, so this is a simple program and this program can be enlarged to any number of items, any number of structures available in the array. Okay, so I think this is a simple code and this is very important program for you guys. So please do the implementation of this code. I'll provide this code in the description link as well, so there you can get or you can find the code. So first learn the basic and then try to implement this code at your end. Okay, so thank you guys, thank you. It is enough for the today. So we will come up with another problem on the structure in the another lecture. So till then, take care, bye bye, and thank you so much.